Good morning, dear students. So, today we are back with a new topic of chapter 2 is matter around us pure, and the subtopic which we'll be studying in today's class would be the separation techniques which will be used to separate the different types of mixtures. And this is the last part of your chapter. With this, your chapter will be finished and you will be doing the question and answers or the exercise work which I'll be giving you in your notebooks. So starting with the techniques, let's study. Seeing a brief introduction of the chapter, that what are these separation techniques is all about. So these separation techniques is just for separation of mixtures, and the methods are used for separating a mixture which depends upon the nature of its constituents. That जो आपके मिक्सचर्स होते हैं उनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि आप जानते हो आपके मिक्सचर्स दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट से मिलके बनते हैं, तो उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनका नेचर कैसा है एंड हाउ दे कैन बी सेपरेटेड. सो देर आर वेराइटी of different methods which are been given to separate these constituent particles amongst each other. Okay, so the various processes which are used to separate constituent. So I was telling you that the different processes which are used to separate the constituent particles of a mixture are filtration, evaporation, sublimation, centrifugation, chromatography, distillation, which is divided into two parts. First is the fractional distillation, the other is the normal distillation, and crystallization. Okay, so these are some of the techniques which you will be studying under this topic, and basically these are used for separation of the non-volatile component, that is solute, from its volatile solvent. Okay, हम ऐसा क्यों करते हैं, जो सेपरेशन टेक्निक्स हैं हम उनको क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं उनको सॉल्वेंट में से सेपरेट कर सकें. दैट्स इट. ओके, एंड जो भी डिज़ायर्ड यूजफुल कंपोनेंट है उसको we can obtain them. So in this presentation, in this video, we will be studying about these techniques one by one. Students, don't get confused. जो आपके ये methods हैं, ये techniques हैं, ये इनका ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है, like according first could be the sublimation one or the distillation one, but you will be studying all these techniques under this video only. Okay, so let's start with the first technique, which is sublimation. So sublimation is the technique, which is used to separate the solid substances when it is heated into the gaseous one rather than changing into the liquid state. इसके बारे में आप पहले भी चैप्टर 1 में भी पढ़ चुके थे कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं वो डायरेक्टली कन्वर्ट होते हैं इनटू द गैसियस फॉर्म्स rather than changing into the liquid form. Okay, and this vapor on cooling first forms liquid and then फाइनली दी सॉलिड. एंड जो इसका रिवर्सिबिलिटी होती है इस प्रोसेस की, उसमें आप देखते हैं कि जो वेपर्स होते हैं सबसे पहले वो कूल होते हैं, देन वो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, देन जब वो फाइनली सॉलिडिफाई हो जाते हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू सॉलिड्स. And let me tell you, the best example for the sublimation process is the substance like ammonium chloride, which directly changes into vapors on heating and the vapors gives back solid substance on cooling. यानी कि ये एक अच्छा एग्जाम्पल है आपके लिए जिससे कि आप इजीली समझ सकते हैं कि जो अमोनियम क्लोराइड है क्या होता है कि जब आप उसको हीट करते हो तो यू गेट वेपर्स ऑफ द अमोनियम क्लोराइड एंड ग्रेजुअली आप जब उसको कूल करते हो देन यू गेट द सॉलिड substance in return. Okay, and this change of solid directly into a vapor on heating of the vapor is called the sublimation.
और या तो सिंपल लैंग्वेज में ये समझिए, द प्रोसेस इन विच द सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू द वेपर्स विदाउट चेंजिंग in the liquid form, it is known as the sublimation technique. Okay, so now moving ahead, let's see the principle which is involved in the sublimation. तो प्रिंसिपल बेटा वही है जो मैंने आपको अभी बताई थी कि क्या होता है. सब्लिमेशन की प्रिंसिपल है दैट ऑन हीटिंग सम सॉलिड सब्सटेंस चेंज फ्रॉम सॉलिड to the vapor state directly without passing through the liquid state, and such substances are known as sublimate, and sublimation is used to separate sublimable volatile components from non-sublimable impurities compounds. Okay, so the principle is very much simple to the definition कि आपको अगर definition पता होगी तो आप easily relate कर पाओगे principle से कि प्रिंसिपल है क्या सब्लिमेशन की. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द एक्टिविटी, दिस एक्टिविटी यू हैव डन इन चैप्टर 1 ऑल्सो, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स. उसमें जब आपने ये टॉपिक पढ़ा था सब्लिमेशन, तो मैंने आपको ये एक्टिविटी भी कराई थी दैट द एक्टिविटी इज़ टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड. तो इस एक्टिविटी में आपने ये किया था कि आपने अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का जो मिक्सचर था, यू हैव टेकन दैट इन अ चाइना डिश and you have covered that with an inverted funnel. Then what happened at the end of the inverted funnel, you have put a cotton plug to close that funnel so that the chloride vapors don't escape in the atmosphere. Then with the help of a Bunsen burner, you started heating the ammonium chloride, and what you saw, as soon as the ammonium chloride was heated, then the ammonium chloride changes into vapors, and these vapors condense on the cold inner side of the funnel to give you back the solid ammonium chloride. And जो जैसे मैंने आपको बताया अभी कि जब आपने ये अमोनियम क्लोराइड हीट किया था, एंड व्हाट यू हैव डन, आपने इन्वर्टेड फनल इस पर रखा था, तो आपने देखा व्हेन एज सून एज यू स्टार्टेड हीटिंग दी अमोनियम क्लोराइड, तो आपको कुछ वेपर्स दिख रहे थे अमोनियम क्लोराइड के. यू कैन ऑल्सो सी दिस इन दिस फिगर. ये आपको वेपर्स दिख रहे हैं, एंड दिस इज द सॉलिड अमोनियम क्लोराइड विच इज देयर. ओके, सो टू ऑब्टेन दीज वेपर्स वी हैव यूज दिस कॉटन प्लग, क्योंकि अगर आप ये कॉटन प्लग यूज़ नहीं करते तो ये वेपर्स एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं. Right, so this is how you can study that the separation of mixtures by sublimation. So the conclusion of the activity is as simple कि जो solid होते हैं आपके वो directly change होते हैं vapor state में without going through the liquid state due to sublimation. Okay, so is this clear? The first technique is your sublimation. Now moving to the next technique. ध्यान दीजिएगा, जो आपकी दूसरी टेक्निक है इट इज़ सेपरेशन बाय अ मैग्नेट. तो जैसा कि आप जानते हो, आयरन इज़ अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ आयरन इज़ यूज्ड टू सेपरेट इट फ्रॉम अ मिक्सचर. राइट, सो if the mixture contains iron as one of the constituent particle, so it can be separated by using a magnet. तो अगर आपके मिक्सचर में आयरन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं तो आप इजीली यू कैन यूज़ मैग्नेट टू सेपरेट दैट मिक्सचर. फॉर एग्जांपल, आई हैव मेड यू डू द एक्सपेरिमेंट नंबर 2 इन केमिस्ट्री लैब मैनुअल्स. मैंने आपको अभी रिसेंटली ही कराया था, इन विच यू हैव सीन द मिक्सचर ऑफ सल्फ़र एंड आयरन फिलिंग्स. उसमें क्या हुआ था, आपने मैग्नेट यूज़ किया था टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ सल्फ़र एंड आयरन फिलिंग्स. राइट, आपने वो मिक्सचर सेपरेट करने के लिए मैग्नेट यूज़ किया था ना. तो जब आपने मैग्नेट यूज़ किया था, व्हाट यू हैव सीन कि जो आयरन फिलिंग्स थी सल्फ़र के और आयरन के मिक्सचर में,
तो वो जो आयरन फिलिंग्स थी वो इसी तरीके से अट्रैक्ट हो गई थी मैग्नेट पे, और जो आपका सल्फर पाउडर था वो सल्फर आपको एज इट इज़ मिल गया, राइट. So always remember that a magnet can be used to separate a magnetic substance from a non-magnetic substance. Okay, and magnets are also used in the recycling industry to separate ferrous and non-ferrous metals. Is that clear? Okay, so those students who haven't done their experiment, you can understand this in a better way. आप अपनी lab manuals का second experiment करेंगे to separate the mixtures and compound वाला. There you can learn that how you can separate the mixtures like this. Okay. So I hope this is clear, and this was the second method, which was separation by a magnet. So let's see the third method, which is the filtration. I guess this is the most easiest method which you will be studying under this separation technique. That filtration is used to separate an insoluble substance from a soluble substance, right? And this is being done by using a filter paper and a funnel. So I'll be teaching you how to make the cone out of the filter paper, which can be fixed in a funnel for the separation through filtration, right? So before that, I just wanted to tell you that the mixture which could be separated by filtration, आप ऐसे कोई examples दे सकते हैं? Yes, जैसे कि आपने क्लासेस में इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए थे, तो यू कैन इजीली स्टेट कि आप कौन से मिक्सचर्स सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन से. ओके. नाउ talking about filtration is used to separate heterogeneous mixtures composed of solids and liquids. ओके, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप जो सेपरेशन होता है इट इज़ फ्रॉम सॉलिड एंड द लिक्विड्स. तो क्या होता है, आप जो फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं, फनल यूज़ करते हैं फॉर फिल्ट्रेशन, उसमें जो आपका सॉलिड रेसिड्यू होता है इट इज़ बिन कलेक्टेड ऑन द फिल्टर पेपर एंड द लिक्विड कैन बी कलेक्टेड इन अ बीकर और अ ग्लास. ओके. एंड व्हाट हैपन, जो फिल्ट्रेशन होता है इट इज़ थ्रू अ पोरस बैरियर विच इज़ यूज टू सेपरेट द सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड. ओके. तो सिंपल सी बात है, सबसे अच्छी चीज़ फिल्ट्रेशन की ये है दैट इट इज़ मोस्ट रिलेटेबल टू यू. चलिए एक एग्जांपल देती हूँ आपको फिल्ट्रेशन का. घर में चाय बनती है, राइट? जब चाय बनती है तो जब आप चाय को फिल्टर करते हैं, व्हाट डू यू यूज़? यू यूज़ अ सीव, राइट? आप जब वो सीव यूज़ करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि जो टी लीव्स होती हैं वो आपकी उस टी स्ट्रेनर या सीव पे आ जाती है, राइट? तो बाकी जो लेफ़्ट ओवर लिक्विड पार्ट होता है वो आप मग में, ग्लास में ले लेते हैं. सो दिस इज़ हाउ द सेम प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन वर्क्स. ओके. ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये प्रोसेस अलग है एंड जो रेगुलर फिल्ट्रेशन आप देखते आए हैं अपने घरों में आसपास वो डिफरेंट है. ओके, नथिंग इज़ लाइक दैट. सो डोंट वरी कि फिल्ट्रेशन इज़ जस्ट द सिंपल मेथड इन विच इट इज़ यूज टू सेपरेट द हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स composed of solids and liquids, जिसमें जो आपका solid residue होता है it is collected on the filter paper और the strainers जो भी आप यूज़ करते हैं, एंड जो लिक्विड पार्ट होता है आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं. ओके. ऑल्सो वन मोर एग्जाम्पल विच इज़ यूज्ड फ्रॉम आवर डेली लाइफ, एज यू कैन सी दैट द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर एट वाटर वर्क्स. आप जैसा जानते हैं कि देयर इज़ अ प्रॉपर चैनल वेयर द वाटर इज़ बीन प्योरीफाइड. तो वहाँ पे फिल्ट्रेशन जो है दैट इज़ यूज, यानी ये टेक्निक यूज होती है. एंड
जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं उसके, these are being carefully observed and it has been carried out. Okay, so students, I hope this is clear. In case you have any doubt, you can ask. So you can also read under this topic only, filtration, page number 90 पे आपकी बुक में 90, there is the technique given to purify the water अंडर दिस फिल्ट्रेशन टॉपिक, तो आप ये रीड कर सकते हैं एक बार. ओके, नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट टेक्निक विच इज सेंट्रीफ्यूगेशन. नया टर्म है, सोच रहे होंगे क्या है ये टर्म. सेंट्रीफ्यूगेशन हमने आज तक नहीं पढ़ा, फिल्ट्रेशन तो पढ़ा था, सब्लिमेशन भी मैम ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा दिया था, राइट. बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेंट्रीफ्यूगेशन कि व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन. तो बेटा सेंट्रीफ्यूगेशन में पढ़ाने से पहले आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि आप जो ये मशीन देख रहे हैं इन दिस स्लाइड, इट इज़ अ सेंट्रीफ्यूगेटर और द सेंट्रीफ्यूज मशीन विच इज़ यूज्ड टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन. ओके, और सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा मेथड होता है जो यूज़ होता है टू सेपरेट द सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड इन विच द मिक्सचर इज रोटेटेड एट अ हाई स्पीड इन अ सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन. अब देखिए ये आपकी जो मशीन है, इट इज़ अ सेंट्रीफ्यूज एंड इट इज़ यूज्ड to separate the suspended particulate of a liquid. आप इसमें liquid mixtures separate करते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जो ब्लड होता है, ब्लड सैंपल, आप उसको सेपरेट कर सकते हैं बाय दिस मेथड कि आपके ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, यू कैन सेपरेट देम, राइट. तो आप पढ़ेंगे इसके बारे में और भी इन दी नेक्स्ट स्लाइड. सो प्लीज़ पे अटेंशन दैट हाउ इट वर्क्स. द सेंट्रीफ्यूजेस रोटेट कंटेनर्स ऑफ द लिक्विड टू सेपरेट सस्पेंडेड मटेरियल्स विद डिफरेंट डेंसिटीज़. यानी कि जैसा कि आपने देखा था, जो ये मशीन है आपकी, इसमें आप लिक्विड जब स्पिल करते हैं, इसमें रखते हैं, तो क्या होता है, the liquid is being placed in that, then at high density, high speed के साथ वो liquid जब rotate करता है, what happens, तो जो उसके constituent parts होते हैं वो separate हो जाते हैं इसमें से. okay, is that clear? okay, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल it is used to separate the human blood or milk which is used to clarify solutions. And what happens, as I was telling you about the example of blood, तो blood is being used to separate by this mixture कि blood में से आप जो यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक यू कैन सेपरेट वाइट पीसीज कौन से हैं, WBCs कौन से हैं, आपके रेड BCs कौन से हैं, प्लाज्मा कंपोनेंट्स या बाकी डिफरेंट कंपोनेंट्स आप उसमें से ले सकते हैं. सिमिलरली मिल्क के साथ आप जब ये प्रोसेस मिल्क के साथ होता है या ये टेक्निक जब मिल्क के लिए यूज़ होती है, तो आप देखते हैं दैट यू कैन चर्न आउट द बटर फ्रॉम द मिल्क, लाइक, और यू कैन सेपरेट द फैट और क्रीम फ्रॉम द मिल्क. ओके, इट इज़ सिमिलर टू दी वॉशिंग मशीन प्रोसेस. आपके घरों में, सबके घरों में वॉशिंग मशीन है, तो जैसे वॉशिंग मशीन का ड्रायर स्पिन करता है कपड़े सुखाने के लिए, उसी तरीके से ये जो मशीन है वो रोटेट करती है when the liquid is being placed in that. Okay, is that clear? So students, I hope this topic is clear to you, and with this we are stopping now and we'll be meeting with the new techniques in the next video. Okay, but ensure that you are reading till here from your books. Okay.
Thank you and have a nice day, students. And in case you have any doubt, you can let me know and clear your doubts in the next class.